Audio Jungle. नमस्कार, आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आप सभी का स्वागत है। आज आसनसोल अदालत के समक्ष घड़ी मोड़ पर वामपंथी संगठन SUCI के छात्र संगठन DSO और युवा संगठन DYO की तरफ से निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा अपनी दरों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हेमंत मलिक, नितेश बॉस, सुजय सेठ, शंख कर्मकार, सुंदर बावरी, संतोष मोदी, अविनाश टुडू, बामा महतो, सुब्रतो बैनर्जी आदि उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान दोनों संगठनों के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी मसम्मत की। इनका कहना है कि कोरोना काल में जब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऐसे में बढ़ी हुई दरों के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। इनका कहना था कि केंद्र सरकार की संस्था ट्राई सभी मोबाइल कंपनियों की दरों को नियंत्रित करती है। ऐसे में इन निजी कंपनियों की मनमानी को केंद्र सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। অল ইন্ডিয়া ডিএসও এবং অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইওর পক্ষ থেকে এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি। বিশেষ করে যেভাবে বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে আজকে মোবাইলের যে রিচার্জের যে যেভাবে তারা যে দাম বৃদ্ধি করছে এবং অস্বাভাবিকভাবে তারা দাম বৃদ্ধি করছে এবং মূলত আজকে তারা লুট করছে, যেখানে মানুষের আজকে মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ডেটা আজকে অত্যন্ত ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে, অর্থাৎ সবারই দরকার, আবশ্যিক হয়ে গেছে। আপনি গ্যাস বুক করুন মোবাইলে করতে হবে, আপনি ব্যাংকের কাজ করুন মোবাইলে করতে হবে, আপনি ছেলেমেয়ের অ্যাডমিশনে যান মোবাইলে করতে হচ্ছে, এখন অনলাইন পড়াশোনা করতে হচ্ছে এখন। ফলে সর্বত্র আজকে কিন্তু মোবাইলের যে গুরুত্ব, যেমন বিদ্যুতের গুরুত্ব, তার চেয়ে কোনো কম নয়। ফলে এই সুযোগে আজকে যেভাবে আজকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো, মোবাইলের রিচার্জের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো, এর প্রতিবাদ আমরা করছি এবং এখানে সমস্ত মানুষকে, যারা মোবাইল গ্রাহক, যারা ডাটা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদেরকে আমরা একত্রিত করে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলব। এই উপলক্ষে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা। এছাড়া আমাদের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পক্ষ থেকে স্টুডেন্টদের 1/3 ভাড়া, যে ভাড়া আজকে বাস ভাড়া যেভাবে নিচ্ছে, এই বাস ভাড়া লুটে নিচ্ছে, যে যা খুশি নিচ্ছে, সরকারও উদাসীন এবং সরকার এবং মালিকের মধ্যে একটা নেক্সাস হয়েছে, কোথাও যেন একটা সমঝোতা হয়েছে অলিখিত। আমি বাড়াবো না, কিন্তু তোমরা যা খুশি নয় আমি বলবো না। ফলে লুটে নিচ্ছে, স্টুডেন্টদেরকে হয়রানি করছে, মেয়ে স্টুডেন্টদের গায়ে হাতই দিয়ে দিচ্ছে, এরকম অনেক কেস আছে। ফলে এটা আমরা বলা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না আজকে। ফলে এই যে 1/3 ভাড়া নেওয়া স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাও মানা হচ্ছে না। তার সাথে মোবাইল রিচার্জের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের অগ্রাধিকার দেওয়া, তাদের যেহেতু পড়াশোনা করতে হচ্ছে, অনলাইনের একটা বড় অংশ, তারা যাতে কম দামে তারা রিচার্জ করতে পারে, এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে আমাদের এই সভা আর এই প্রতিবাদ সভা এবং আন্দোলন আমরা যাতে আগামী দিনে গড়ে তুলতে পারি। এবং সবাইকে বলছি যে আমরা একত্রিত হয়ে যদি আন্দোলন করি তাহলে কিন্তু এর সাকসেস পাবো। দিল্লির কৃষক আন্দোলন আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে কত বড় সাকসেস। ফলে এইটুকুই আমার বলার। ধন্যবাদ। আমার নাম শঙ্খ কর্মকার। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने राहालैन और दक्षिण थाने के सामने बैठने वाले हॉकरों सहित पूरे शहर के हॉकरों से अनुरोध किया कि वो लोगों के चलने फिरने की जगह छोड़कर अपना व्यवसाय करें। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि नगर निगम को उन हॉकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े। आज इन हॉकरों ने उनसे मिलकर खुद ही चलने फिरने की जगह छोड़कर व्यवसाय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हॉकरों के कारण एम्बुलेंस को या विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो।
अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज ही सब्जी मंडी के लोग आए थे, उनको दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा, जिस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है। फल पट्टी के व्यापारियों को भी स्थानांतरित दूसरी जगह किया जाएगा, इसे लेकर उनकी भी सहमति मिल गई है। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि लोगों को एक सुंदर और सुसज्जित आसनसोल मिले। इसके लिए वो अभिजीत घटक, वी शिवदासन उर्फ दासू, राजू अहलुवालिया, आरटीओ के अधिकारियों, मिनी बस, बड़े बस एसोसिएशन के लोगों से बात करेंगे। साथ ही बेतरतीबी से अपनी बाइक कहीं भी पार्क करने वालों के खिलाफ उन्होंने पुलिस या कार्रवाई की बात कही। बचपन में जो आसनसोल हम लोग छोड़ के गया था, हाँ कौशिक बाबू, ठीक ठीक। तो सर जो बोले हैं उसके बारे में बोलिए। हम लोग चाहते हैं सर, हम लोग अपने लिए यूनियन बनाते हैं। अच्छा, उसमें आप भी उसको डिसाइड कर लें, और यूनियन जो हेड जो बोलेगा रूल तरीका अपने अपने तरीका से, अपने रूल तरीका। ना वो तो ठीक है, कस्टमर से बिहेव करने से तो आप ही का व्यवसाय बढ़ेगा। जी सर, लेकिन आपको तो रास्ता छोड़ने पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी सर कोशिश कर रहे हैं पूरा। आप लोगों को रास्ता छोड़ने पड़ेगा। एक तो बढ़िया हो जाए ना, मेरा लड़का कम से कम, मेरा बच्चा कम से कम कहे, जो मेरा बुजुर्ग है, जो आता है मेरा मेहमान, तो इसी मुताबिक आप ही लोग करके काल से शुरू आए थे हम लोग। मेयर को हम लोग को दिया था ऑर्डर कि सोमवार का दिन आके बात करने के लिए, तो हम लोग आए और मेयर साहब का भी जो बात हम लोग सुने तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग छोटा करके लगाइए और सुंदर करके लगाइए। ये प्लास्टिक ये सब जो है, हाँ, हटाइए और कुछ अपना बढ़िया से साफ़ सुथरा से लगाइए कि आने वाला जो है वो देखे आसनसोल को कि हाँ आसनसोल अच्छा लगा, मार्केटिंग करने में भी अच्छा लगा। इसलिए हम लोग मेयर साहब का सामने आए। अब मेयर साहब भी बोला, सहूलत दिया हम लोग को कि ठीक है आप लोग बढ़िया से लगाइए और शॉर्ट करके लगाइए, ऐसा लगाइए कि दूसरा को दिक्कत नहीं होवे। कोई भी आदमी आए तो बोले कि हाँ ठीक है। आपने जिस तरह दुकान बना रखा है, ये तो अच्छी बात है ना कि साफ़ सुथरा से बना के अगर हम दुकानदारी करते हैं, डिसिप्लिन अच्छा करते हैं तो अच्छा बात है। और हम शॉर्ट करके बनाने के बाद में अपने कारपोरेशन को अप्लाई किए। कारपोरेशन तो हम लोग को तो पहला मीटिंग हुआ था कि साफ़ सुथरा एल्बेस्टर लगाओ, तुम लोग प्लास्टिक से आग लग जाएगा, इससे बहुत सा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग बोले कि एल्बेस्टर लगा देते हैं, उससे इंजोला भी आएगा हमारा और मेरा प्लास्टिक भी बच जाएगा। इसलिए हम लोग एल्बेस्टर लगा दिए। मेरा नाम MD सज्जाद। आज हम लोग देखिए हॉकर को लेकर के आए थे। अमरदा ने बात कहा था इससे पहले कि सोमवार के दिन में आप हॉकर लोग के साथ में मीटिंग होगा, तो हॉकर के कुछ लोग ने कहा मुझे कि ठीक है आप भी रहिए भैया, हमारा तो हॉकर्स में दुकान नहीं है, फिर भी इन लोग के सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए हमने बोला कि ठीक है जो बेहतर होगा हम करेंगे। तो इनसे पहले हमारा पोचूदा से बात हुआ था। पोचूदा ने कहा कि ठीक है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो है वो अमरनाथ चटर्जी हैं, आप उनसे जाके बात कीजिए, हॉकर्स के प्रति जो भी उनका अच्छा जो रोल होगा वो करेंगे। तो हम लोगों ने उस दिन उनसे बात की, तो अमरदा ने कहा कि ठीक है 2-4 आदमी नंबर दे दीजिए, आपको सोमवार को मंडे का दिन बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आया था, आकर के अमरदा के सामने सब लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखा कि कैसे लगाना है। अमरदा ने कहा कि देखिए ये आसनसोल जो शहर है ये हम लोगों का शहर है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाए रखिए, खूबसूरत रखिए, इसलिए कि कल ऐसा नहीं हो कि आपको भी तकलीफ़ हो और हमको भी तकलीफ़ हो। तो आप लोग डिसिप्लिन के साथ में जितने भी जो दुकान है सबको छोटा करके सुंदर करके दुकान लगाइए, और फुटपाथ में जो भी पब्लिक है, माँ बहन जो आती है बाहर से, शहर से जो आते हैं लोग, तो उनको ये नहीं लगे कि आसनसोल जो है पहले के बनिस्बत ख़राब हो गया है। आपको डिसिप्लिन के साथ में दुकानदारी करना है, डिसिप्लिन के साथ में आपको मार्केटिंग करना है और सबको सपोर्ट करना है। इस वजह करके हम लोग आए थे, उन्होंने भी अपना ख्याल रखा और कुछ लोगों ने भी अपना ख्याल रखा, बात रखी, यही बात करके हम लोगों ने ख़त्म किया। आप देख ली। और जी मेरा नाम पप्पू हुआ। এখানে আমরা এই রাহালেন এবং থানার সামনে যে সমস্ত হকাররা রাস্তায় নেমে গেছে এবং যেখানে খুব কনজাস্টেড এলাকা, আমরা সারা শহরের হকারকে অনুরোধ করব যে আপনারা মানুষকে চলতে দিন, আপনারা মানুষের কথা বলতে দিন এবং মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। বিশেষ করে আমরা চাইছি অ্যাম্বুলেন্স ঠিক মতন পেরোক, বিশেষ করে কোনো ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে সেখানে সে যেন সুন্দরভাবে পেরোতে পারে এবং
প্রত্যেকে যারা হকার রয়েছে, যারা সমাজে রয়েছে, তাদেরও ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে যায়, তাদেরও ছেলেমেয়েদের অসুস্থ হয়, তাদেরও মা বাবা অসুস্থ হয়, তারা যেন তাদের অ্যাম্বুলেন্সটা কোনো জায়গায় যেন না আটকায়, তাদের ওষুধ কিনতে যাওয়াটা যেন কোনো জায়গায় না আটকায়। আমরা সেই জন্য চাই যে সুন্দরভাবে ফাঁকা ফাঁকা করে বসুক এবং রাস্তা মানুষকে দিয়ে দিক, মানুষ যাতে চলাচল করতে পারে। বলছি স্যার, রাহালেন এবং ঘাটিগলি এই ধরনের কয়েকটা জায়গা মানুষরা নিজেই মোটরসাইকেল লাগিয়ে দিচ্ছে, ওইসব জায়গা না, এটা তো আমরা এই যে হকাররা আজকে যে সহমত দিয়ে গেলেন, এতে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যেন কোনো রকম আইনি প্রয়োগ করতে না হয়, আপনারাই করুন। ওনারা সহমত দিয়ে গেলেন যে ওনারা সরিয়ে কাজকর্ম করে নেবেন এবং সেখানে আমরা এরপরে আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে বসবো। ওনারাও রাজি হয়েছেন। আজকে আমরা সকালে ফলপট্টির লোকেরা এসেছিলেন, ওনাদের সঙ্গেও আমরা কথা, এই সবজি মান্ডির লোকেরা এসেছিলেন, ওনাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমরা ওনাদের জায়গা অলরেডি ঠিক করছি, ওখানেও ওনারা ট্রান্সফার হয়ে যাবেন, রাজি হয়েছেন। ফলপট্টিরা ভেতরে ঢুকে যাবেন, সেটাও রাজি হয়েছেন। আমরা যেটা চাইছি, মানুষ যেটা চাইছে, আসানসোলেরই মানুষ, তারা চাইছে যে সুন্দর আসানসোলের কথা, সেই সুন্দর আসানসোল প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং মোটরসাইকেল যেটা রাখছে, সেটা মোটরসাইকেল তার জিম্মাবাড়িতে লাগছে। পুলিশকে বলবো যে আইনির মাধ্যমে পুলিশ সেটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। আমরা বাস অ্যাসোসিয়েশনের লোককে ডাকবো, বড় বাস অ্যাসোসিয়েশনের, এবং আমরা মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের লোককে ডাকবো। আমরা আইএনটিটিউসির প্রেসিডেন্ট আমরা অভিজিৎ ঘটককে ডাকবো, আমরা রাজু আলওয়ালিয়াকে ডাকবো, আমরা ভি শিবদাসনকে ডাকবো, উনিও একটা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, এবং আমরা আরটিএর লোককে ডাকবো। এবং তাদের ডেকে আমরা যৌথভাবে মিটিং করে আমরা আগামী বছর যেন মানুষ সুন্দর আসানসোলের ঘোষণা করতে পারে, সেটা যেন ব্যবস্থা হয়। आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर के निकट रघुनाथ बाटी गांव में प्रगतिशील बावरी समाज की तरफ से विजया सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत खटक, आसनसोल नगर निगम के 20 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद श्रवणी मंडल, प्रगतिशील बावरी समाज के पश्चिम के अध्यक्ष समीर बावरी, शुभम एंटरप्राइज के कर्णधार और मानवाधिकार कर्मी दिनेश गुराई सहित प्रगतिशील बावरी समाज के तमाम सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील बावरी समाज की तरफ से अभिजीत घटक का स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में बावरी समाज की तरक्की के लिए कई परियोजनाएं ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले बावरी समाज के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सहित जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार आज बावरी समाज सहित विभिन्न वंचित वर्ग के लोगों के लिए कल्याणमूलक परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। अभिजीत घटक ने कहा कि बावरी समाज के विकास के लिए ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार इस क्षेत्र में मुलाय घटक ने बावरी समाज के विकास के लिए राज्य सरकार की हर परियोजना को अमली जामा पहनाया है। अभिजीत घटक ने कहा कि राज्य सरकार और TMC हमेशा बावरी समाज के साथ है। अभिजीत घटक ने दावा किया कि अगर पूरे देश में बावरी समाज सहित सभी दलितों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद किसी ने सबसे ज़्यादा सोचा है, उनका नाम ममता बनर्जी है। একটা কথা আমরা স্বীকার করেই নিচ্ছি যে 2011 যে নির্বাচনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং আমাদের আসানসোল উত্তরের বিধায়ক আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক, জামুরিয়ার যিনি বিধায়ক হয়েছেন হরেরাম সিং, এবং যেখানে যেখানে বাউরি সমাজের একটা বড় অংশের ভোটার রয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি যে তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে তারা অনেকটা এক অংশই আমাদের সমর্থন করেছে। হয়তো আমরা পুরোপুরি সমর্থনটা পাইনি, সেখানে আমাদেরও অনেক ভুল ত্রুটি আছে। আমরা হয়তো যে কাজগুলো আমাদের নেত্রী করেছেন, যে কাজগুলো আমাদের সরকার করছে বাউরি সমাজের জন্য, যে প্রকল্পগুলো আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন,
সেগুলো হয়তো আমরা সঠিকভাবে মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। কিন্তু নির্বাচনের কয়েক মাস আগের থেকে আমরা যে প্রচেষ্টা করেছিলাম সেটা কিন্তু আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে বাউরি সমাজের যারা আমাদের ভাই বোনেরা রয়েছে তারা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে সমাজের সাথে যদি সত্যিকারের কেউ সঙ্গে রয়েছে, যদি এই সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যিকারের কেউ পদক্ষেপ নিচ্ছে বা তিনি নানান কর্মসূচি করছেন, তো তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বা আমাদের এখানকার মন্ত্রী মলয় ঘটক। प्रथम सबसे पहले तो यहाँ पे आके और आज इस विजय मिलन में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर प्रगतिशील बाउरी समाज इन्होंने ये आयोजन किया है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ब्लॉक है सभी ब्लॉक से यहाँ से प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये छोटा तरीका से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिन में और बड़ा तरीका से होगा और भी लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये प्रगतिशील बाउरी समाज जो है ये बाउरी समाज के लिए काम करता है और उनके उन्नयन के लिए काम करता है। यहाँ पर बहुत सारा काम उन्होंने किया है लोगों के लिए, खास करके जो गरीब है उनके लिए बहुत काम किया है। उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, उनको जिसका घर और नहीं है उनको जैसे घर मिल जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो सरकार है उन्होंने 5 करोड़ रुपया जो दिए है बाउरी समाज के आगे बढ़ाने के लिए, उनसे भी बहुत लोगों का काम हो रहा है, घर बन रहा है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर सभी लीडर्स को बुलाया गया है और सभी लीडर्स ने यहाँ पर आके आपस में बात करके आने वाले दिन में क्या काम करना है इसके लिए उन लोग आगे बढ़ेंगे। सर कल कोलकाता में ये चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, इसमें भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि वो रिगिंग हुआ और वो पूरे चुनाव को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, भाजपा को मालूम है कि कलकत्ता में एक भी सीट उनको नहीं मिलने वाला है और वहाँ का लोग भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। इसी वो लोग पहले से जानते हैं कि वो लोग हार जाएंगे, इसीलिए झूठा बात बोल रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं कि हम लोग को ये किया है। हम लोग तो देखा वोट किस तरह से अच्छा से हुआ है, बढ़िया से हुआ है। वहाँ पर सारे लोग वोट दिए हैं, पब्लिक वोट दिया है, वोटर्स ने आके बूथ में आके वोट दिया है। तो वोटर तो कोई आरोप नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा कि हम वोट देने नहीं सिखाए। ये तो सिर्फ भाजपा का लीडर लोग बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। वोट अच्छी तरह से हुआ है और तृणमूल कांग्रेस जितने भी सीटें सभी सीटों में जीते। और शिल्पांचल भाजपा का कहना है कि वो लोग 66 सीटों में यहाँ पे आगे हैं 106 में से, तो उस लॉजिक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वैसा देखा जाए तो हम लोग भी जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में 9 सीट है, 9 में हम लोग 6 में जीता हुआ है और हम लोग जितना जो कॉरपोरेशन का है उसमें भी हम लोग आसनसोल नॉर्थ में जीता है, हम लोग रानीगंज में जीता है, जामुड़िया में जीता है। अगर वैसा तरह से देखा जाए तो हम लोग उससे भी ज़्यादा से आगे है। ठीक है, वो खाली उससे उस तरह से देखने का ज़रूरत नहीं है। जब वोट होगा तभी देखेंगे कि कितना सीट हम लोग को मिलता है और कितना सीट बीजेपी को मिलता है। आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके के ईदगाह मोहल्ला के एक घर से 2 मोबाइल और 6,000 रुपये नकद चोरी हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी देते हुए आयशा खातून ने कहा कि रविवार रात को वो मोबाइल को अपने सिरहाने रख के सो रही थी। सुबह देखा तो मोबाइल गायब था। आयशा ने बताया कि महज 1 महीने पहले ही उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए 13,000 रुपये में ये मोबाइल ख़रीदा था। अब मोबाइल के चोरी होने से आयशा इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी। आयशा ने बताया कि वो इस बार CBSE बोर्ड की परीक्षा देंगी, लेकिन अब वो क्या करेंगी ये सोचकर परेशान है। वहीं आयशा खातून के मामा मोहम्मद साजिद ने कहा कि कल रात 12 बजे तक भी सब कुछ ठीक था, उसके बाद ही ये सब घटना घटी। उन्होंने कहा कि उनकी भांजी और उनका मिलाकर 2 मोबाइल चोरी हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पैंट की जेब में पर्स था जिसमें 6,000 रुपये थे, वो भी चोरी हो गए।
उन्होंने कहा कि ऐसा पहला नहीं है कि इस तरह की कोई घटना घटी है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस को इसकी इत्तला दी गई तो पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने इनको धीरज रखने को कहा। उनका कहना था कि धीरज रखने का ही ये नतीजा है कि इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की चोरियां हो चुकी है मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि आज अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि घर में लोगों के रहते हुए भी चोरी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में नशा करने वालों की भरमार हो गई है। इनका आरोप है कि इन्हीं नशा करने वालों की ही ये करतूत है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। क्या घटना हो बोलो, क्या हुआ घटना? 2 मोबाइल चोरी हो गया। किसका? मेरा एक नार्जो का था 12,990 का और एक जियो का फ़ोन था। जियो। ये चोरी कब हुआ तुम्हारा? आज रात में। आज रात में चोरी हुआ। कहाँ घर है तुम्हारा? शहीद नगर। शहीद नगर। हाँ, ईदगाह पड़ा। तो स्थानीय थाने में आप तुम लोग जनाया? जाएंगे, FIR दर्ज करने जाएंगे। क्या नाम हो तुम्हारा? नाम से अलार्म, सुबह का अलार्म भी लगाए थे लेकिन वो भी नहीं बजा। जब उठ के देख रहे तो है ही नहीं मेरे पास। जब खोज रहे इधर उधर, मेरा यहाँ पर पर्स फेंका हुआ था, उसमें मेरा पैसा था 1000 तक, वो भी मेरा गायब है। उधर मेरा खाला का फ़ोन वहाँ अलमारी के अंदर रखा हुआ था। मामू का पर्स में तो अलग 6000 था उनका, वो भी गायब। और वहाँ 4 आदमी सो के है, शोकेस में यहाँ पर मेरा पर्स टांगा हुआ था, उसमें से मेरा पर्स से भी पैसा उसी में से पैसा निकाल के मैं रास्ता लेके। तुम्हारा मोबाइल कौन सा? मेरे सर के पास में था, रेडमी था, अभी 1 महीना ही हुआ था उसका लिए। कितना में ली थी तुम? हम उसको लिए थे 13,099। 13,000 मोबाइल मैंने पढ़ाई कर रही थी? हाँ, पढ़ाई के लिए था। अभी 2 महीना बाद मेरा बोर्ड का एग्जाम है। फर्स्ट टर्म अभी गया है, सेकेंड टर्म अभी होगा। क्या नाम हुआ? ऑनलाइन के लिए थे हम, पढ़ाई करने के लिए। अब हम कैसे पढ़ेंगे अपना? बोर्ड का एग्जाम है, CBSE बोर्ड है, कोई मजाक तो है नहीं। 2 महीना और। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ऐसा कासिम। ये जगह क्या नाम है? ईदगाह मोहल्ला। क्या घटना हुआ आज? हमारा घर से जो है 2 मोबाइल चोरी हो गया और मेरा पर्स टांगा, मेरा पैंट में पर्स था, वो टंगा हुआ था, उसमें से भी पैसा निकाला गया। मतलब हम 12 बजे सोए, 12 बजे तक कुछ नहीं, हम ऐसे लेट नाइट तक सोचा तो मोबाइल वो चलाता है। लेकिन उसके बाद जब सुबह में हम उठ रहे हैं तो देख रहे हैं ये सब घटना, ये सब मामला कि मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है। तो हम सुबह गए, हम पहले अपना वार्ड का प्रेसिडेंट को बोला, नजमुल खान को थाना जाओ। हम थाना गए, थाना में जा करके पुलिस को बताया ऐसे घटना। वो बोला कि हम मार्शल भेज रहे हैं, दादा को मार्शल भेजे। दादा आए यहाँ पे इंक्वायरी किए तो बताया कि अपनी धैर्य धारण। तो আমি সেটাই বললাম कि আমরা তো जो ধৈর্য ধরছি কিন্তু जो चोर আছে তার দের साहस बढ़े। हम लोग सबर करें और उन लोगों का साहस बढ़ रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। कोई नया नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ, उससे भी पहले हुआ, उससे और भी पहले होगा। लगातार चोरी हो रहा है, लगातार चोरी हो रहा है, कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो जो सामने वाला है उसका तो साहस बढ़ेगा। आपका पर्स में अभी जो हुआ ये भी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या चोरी होगा? आपका पर्स में कितना अमाउंट था? मेरा पर्स में 6,000 रुपया था। और मोबाइल? मोबाइल 2 ठो। कौन सा कंपनी का? अलग अलग मोबाइल था, एक आप MI का था और एक सैमसंग का था। दोनों मोबाइल का अमाउंट क्या होगा? एक 13,000 का था और एक शायद 12,000 का था। ये घटना कब हुआ? रात में? ये घटना रात में हुआ, पिछले रात में। अभी क्या मांग रखे हैं आप लोग? अभी हम मांग रखे कि मेरा जो गया मेरा वापस मिल जाए हमको, और भविष्य में ऐसा नहीं हो। आज तो मेरा गया, हमको तो पता कि नहीं मिलेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है? नहीं कर? अपने कार्रवाई की, लेकिन वो बोली अभी आप धैर्य धरिए। लेकिन मेरा बोलना है कि कितना धैर्य धरेगा? ये धैर्य धरने का ही नतीजा है। ये धैर्य धरा है ना आदमी, इसी का नतीजा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। जगह का नाम? ईदगाह पड़ा। आसनसोल नगर निगम के 1 नंबर बोरो के जमुड़िया क्षेत्र में 3 नंबर वार्ड के परिहारपुर बगानपाड़ा में नवनिर्मित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह और आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य देवेंदु भगत ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली, कौशिक सेनगुप्ता, साधन रॉय, निर्मल मंडल, शेख शानदार, अजय खैतान, जयप्रकाश दुकानिया, प्रदीप दुकानिया, राखी कर्मकार, अब्दुल हाउस, सुब्रत अधिकारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि
आज जिसकी मदद से ज़मीन देने पर इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के सरकार आने के बाद विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है ताकि गरीब लोग इस सुविधा से वंचित ना रहे। आज आसनसोल नगर निगम के अंदर 22 नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया है। इनमें सभी गरीबों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। इस स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की दवाइयाँ का उत्तम इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड के समय इस केंद्र के चिकित्सक अपने जीवन की परवाह ना करते हुए लगातार समाज के हर तबके के लोगों को सेवा प्रदान की। अमरनाथ चैटर्जी ने चिकित्सकों के इस सेवा की इसकी मुक्त कंठ से तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में आसनसोल सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है वो पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब इस स्वास्थ्य केंद्र में ही एक्सरे भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कार्य यहाँ की जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। আমাদের হররাম সিং মহাশয়কে আর এখন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যিনি আছেন অমর চ্যাটার্জি মহাশয়, এনাদের যৌথ উদ্যোগে আজকের দিনে আমরা সবথেকে ভালো জিনিসটা যেটা উপহার হয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের একটা গাড়িকে বাদ দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা সফল হবে না। এই কারণে যখন আমাদের এখানে তিনটে আমাদের হেলথ সেন্টার ঠিক হয়েছিল, একটা হয়েছিল বালনদায়ের নেতৃত্বে যে ওষুধ দেওয়া হয় কোনো জায়গায় পাবেন না, যে ট্রিটমেন্ট করা হয় কোনো জায়গায় পাবেন না। আমি সব জায়গায় বলি মানুষকে যে ভুল মানুষ করে আবার ঠিক মানুষও করে। সাধনতাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। সাধনতা যখন কলিয়ারি এই অঞ্চলের কলিয়ারিতে কাজ করতেন তখন থেকে রাজনৈতিক সম্পর্ক। আজকে সাধনদা यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।